The teaching at Vedantu was amazing. One aspect where Vedantu teaching differed from a normal offline coaching was the attention teachers gave to our doubts. No matter how many times we asked a doubt, the teachers would patiently clear the doubt every single time. And they made learning a very fantastic experience for us. Hi bachcho, how are you? So welcome to yet another session of differential equations. I hope all of you are really good and geared up for the learning ahead, right? Chalo. So bachcho, today is going to be one of the most important classes of differential equations because today we are going to learn linear form of differential equation. And as I said in the previous class, मैंने आपको बताया था previous class में that linear differential equation is the most important for JEE. ओके चलो तो आज ये करेंगे बी वेरी वेरी फोकस्ड इन टुडेज क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओके एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं बिट अबाउट मी विच यू गाइज नो सो आई स्किप इट लेट्स सेव टाइम टुडे हाँ बच्चों इफ यू रियली बिलीव इन वेदांतुज विजन ऑफ टेकिंग एजुकेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर ठीक है तो हमें ज़रूर से हेल्प करना इन अवर विजन बाय शेयरिंग these classes with your friends on WhatsApp, Facebook, जहाँ पे भी आप लोग हो. Do subscribe if you are new by pressing on the bell icon so that you keep getting notifications of all the classes which are coming and which are going to come. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. So बच्चों, where are we now and what have we learnt? So guys, variable separable we have done this, right? We have then done homogeneous equation. Important क्या था बच्चों? Let me tell you the importance as well. We realize this is important for JEE. Okay, this is okay. This is definitely not important for JEE. This is usually for board. Reducible to homogeneous, but this thing, bachcho, this is what we are going to do. Linear differential equation. This is very very important for JEE. ओके सो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व जेई प्रॉब्लम्स एज वेल, सम जेई प्रॉब्लम्स एज वेल. ओके ठीक है स्वर, मैं देखता हूं बेटा, आई हैव नॉट चेक्ड. आगे बढ़े, लेट अस मूव अहेड. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सो एक सेकेंड, जस्ट गिव मी मोमेंट, एक सेकेंड बच्चों. Just a minute, something got stuck maybe. हाँ चलो आगे बढ़ते हैं. So बच्चों, these are the kind of problems that we are going to do. Sorry, we got stuck somewhere. So this is one of the problems that we are going to learn to solve today. So this is a JEE Mains 2015 problem. We will learn to solve this today. Another kind of problem is this. This is JEE Mains 2017 problem. We are going to learn to solve this as well today. ओके इफ यू आर वॉचिंग इट एज अ रिप्ले लेटर ऑन, अगर आप बाद में देख रहे हो तो यहीं पे रुक जाओ. आपको अगर पहले से आता था, ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड पुट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. अगर अभी तो अपन लाइव कर रहे हैं, सो वी आर गोइंग टू लर्न टू सॉल्व दिस. आगे बढ़ते हैं. चलो बच्चों, नाउ लेट अस लर्न व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस हियर. नाउ द क्लास इज एक्चुअली स्टार्टिंग. ओके सो बच्चों, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if dependent variable and its differential occur in degree 1 and they are not multiplied together. मतलब देखना ध्यान से, y and dy by dx, dependent variable and its differential. So if y is the variable, if it is a dependent variable, then उसका differential. अगर ये दोनों linear, if they both appear in the equation, differential equation, but they are not multiplied together, then it will be a linear differential equation. तो ध्यान से सुनना, y भी होना चाहिए, there should be y, there should be dy by dx in the same differential equation, but they should not be multiplied. Then the equation, the differential equation will be a linear differential equation. In the same way बच्चों, if x is there and dx upon dy is there, but they are not multiplied together, then again it will be a differential equation. We call it differential equation in y, linear differential equation in y. We call it linear differential equation in x. अभी examples दूंगा बहुत सारे, I'll take lots of examples, but again
I'm repeating, y and dy by dx in same differential equation and they are not multiplied together. Linear differential equation in y, right? X and dx by dy in the same differential equation but they are not multiplied. It is a linear differential equation in x. Please make a note of it. Very, very, very important. Majority students will get confused here. Okay. So step 1, बच्चों क्या करेंगे? In step 1, we will see if it is a linear differential equation or not. Step 2, we will identify if it is a linear differential equation in x or in y. Then we have a method to solve which we are going to learn very soon. अभी हम method समझेंगे. सूरज, ये बेटा रिमेंबर नहीं करना, ये तो कंसेप्ट है. वी आर जस्ट लर्निंग टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी आर नॉट रिमेंबरिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट द कंसेप्ट. ओके, चलो एग्जांपल देता हूं मैं. लुक एट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सोच के बताओ, इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों? यस और नो? दिव्यांशु, बर्नौली वी विल डू लेटर. बर्नौली वी विल डू लेटर. Yes, Preetham says yes, Ajay says yes, because what happens, what are there? We see there is a y, we see there is a dy by dx. Are they getting multiplied with each other? No. Yes, then it is a linear differential equation. We call it linear differential equation in y. It is a linear differential equation in y. Got it? Clear? ठीक है, और examples लेते हैं. Let's see more examples. कहाँ गया? हाँ, now look at this. ये तो हमने कर लिया. This is we just did. This is linear in y. Degree 1 not multiplied. Got it. Now look at this one. X square dy by dx plus y 1 plus x is equal to minus x. इसको बताओ. Yes, Vailad, it is important for board as well. Thank you, Jagdish. Yes, Rahul, board के लिए भी important है बेटा. है ना? आ जाओ. Look at this. Is it a linear differential equation? Yes or no? Sanju says no. Preetham says yes. Adarsh, Suraj says yes. Yes, it is. क्यों? अरे भाई, क्या क्या दिख गया आपको? आपको दिख गया dy by dx, आपको दिख गया y. बस, that is all that matters बच्चों. You should see a dy by dx and you should see a y and they should not be multiplied to each other. Guaranteed linear differential equation in y. It is a linear differential equation in y. Okay, is that clear बच्चों? I am seeing lot of your comments here. No वाले बच्चों, are this clear? Is this clear? Yes, Ram Raju, it is independent of power of other terms. Yes, you are right. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता x की क्या पावर है. I don't care what other terms are. All I care about is one dy by dx and one y, and they should not be multiplied together. Let's take more examples. Look at this one now. ये तो अपन ने कर लिया अभी. This we did. It's a linear equation, linear differential equation in y. Y and dy by dx, they occur and they are not multiplied. Cool. Now look at this one. Y dy by dx plus xy is equal to 2. जल्दी से बताओ. Is it a linear differential equation? देखो y और dy by dx तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ. ये तो पंगा है, ये तो पंगा है. So it should not be. But ध्यान से देखो. No, yes, it is not a linear differential equation in y because y and dy by dx are getting multiplied with each other. गड़बड़ है, गड़बड़ है, right? Even if you divide by, कुछ बच्चे बोलते हैं मैं y से डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? dy by dx plus x is equal to 2 upon y. Again, not a linear differential equation because what did I tell you? dy by dx and y both should be with the degree 1. यहाँ पे y की डिग्री 1 नहीं है because this term can be written as 2y raised to power minus 1. So it is not a linear differential equation in y. Clear? Is that clear all of you? So dy by dx भी होना चाहिए और y भी होना चाहिए और दोनों की डिग्री 1 होनी चाहिए. Cool? So it's not a linear differential equation. Let's take more examples. इसको देखो ध्यान से. Look at this one very clearly. Suraj, is that clear to you now? ये क्या है? Is it a linear differential equation in y? y में तो नहीं है.
क्योंकि यू सी ए वाई स्क्वायर, यू वॉन्टेड वाई, यू डोंट वॉन्ट वाई स्क्वायर, यू वॉन्ट वाई विद द डिग्री 1. बट ध्यान से देखो, इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स? थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख के देखें इसको. लेट्स ट्राई टू रीअरेंज इट अ बिट. इसको एक काम करते हैं, ये y में तो नहीं है, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. बट इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इन x? नहीं, वो भी नहीं होगा. इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x ऑल्सो, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, राइट? सो अगर ये x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता तो अगर मैं dx अपॉन dy क्रिएट करता तो साथ में मुझे x चाहिए होता, राइट? बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है. सो इट इज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x और इन y, राइट? सो आंसर हियर इज नो. नो. ठीक. बट लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. अब इसको देखो ध्यान से, लुक एट दिस वेरी क्लियरली. यस जगजीत and Utsav, you are right. Prantik, power was 2, right? And Amir Mohammed, yes, you are also right. It was not a linear differential equation x also. Now Prantik, yeah, you may be right here. Adarsh, yes, you are right. Ram Raju, yep. देखो ध्यान से, y में तो नहीं है because there is a ln y and dy by dx. Not a linear differential equation in y. पक्का. So not, oops, कहाँ गया? एक सेकेंड. हाँ, ये था ना. तो ये तो नॉट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. Why? Because there is a ln y. I wanted y, not ln y. बट मैं इसको रीअरेंज करता हूं. इफ वी रीअरेंज इट, इफ आई सॉर्ट ऑफ राइट इट लाइक दिस, देखना ध्यान से, मैं इसको लिखता हूं 1/x ln y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस dy बाई dx. रीअरेंज कर दूं इसको x को उधर ले जाऊं, dx बाई dy इधर ले आऊं. आई कैन राइट दिस एज dx अपॉन dy, राइट? dx अपॉन dy उधर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? x अपॉन ln y इज इक्वल टू 0, राइट? नाउ इफ यू सी वेरी वेरी केयरफुली, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, you see dx upon dy and you see x. Since there is a dx upon dy and there is an x, then it is a linear differential equation in x. Linear differential equation in y में क्या होना चाहिए था? y and dy by dx. For linear differential equation in x, there should be dx upon dy and x, both in degree 1. Is that clear बच्चों? Is that clear all of you? Anybody any doubt? बच्चों I devoted 10 minutes to it because I know अगर ये clear नहीं होगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन में फंस जाओगे. यू विल गेट स्टक इन आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. तो सॉल्व तो बहुत बात की बात है. क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड, गुड, गुड जॉब. सो नॉट इन y, we also need to check for x. So when we wrote it like this, we realize it is a linear differential equation in x, is what we did. ठीक? So it is LDE, linear differential equation in x. Cool? चलो, very good. Now we are learning to solve it बच्चों. तो अब क्या करते हैं अपन? We now create a general form of linear differential equation to learn to solve it, which you must have learnt in books. इसको देखो ध्यान से. A linear differential equation in y looks like this. Yes or no? A linear differential equation in y looks like this. There is a dy by dx and there is a y. dy by dx plus p of y is equal to q, right? तो आपके जो p और q है ना यहाँ पे, by the way this is a linear differential equation in y, no doubt about it. There is a dy by dx, there is a y. But ये जो p and q है ना आपके, these p and q, they are either functions of x, they are functions of x or constants. They are either functions of x or they are constant. Remember this. Similarly, I can also create dx upon dy plus p of x is equal to q. Look at it very very carefully. This is a linear differential equation in y. This is a linear differential equation in x, because you see dx upon dy and you see x. In this case, आपके जो p और q है ना बच्चों यहाँ पे, these are functions of
either y or constants. This is what we call as the general form of linear differential equation, जिसको अब हम solve करना सीखेंगे. We will learn to solve it as we go ahead. Is that clear? Note किया बच्चों सब नहीं है? Pranav is asking what is taught in chemical engineering? Not chemistry for sure. It is a lot of thermodynamics and lots of other things, but not chemistry. So don't worry. हाँ, okay. Is that clear? तो अभी अपन ने क्या किया? Oops. हाँ. So these are the linear differential equations in x and y. Now अब let us learn to solve it. अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना है मैं जो बोल रहा हूँ. Before I go ahead, let me ask you one thing. Let me create one thing. Let me create say y into e raised to power integral p dx. मैं क्यों create कर रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको. Imagine मैं create करता हूँ y e raised power integral p dx. Imagine it is a term, it is something. अगर मैं इसको differentiate करूँ, what if I differentiate it? What will you get? Just a differentiation problem before I go ahead. इसको अगर मैं differentiate करूं बच्चों तो क्या आएगा? Can you tell me? Can you differentiate this and tell me? It will lead to a derivation very soon. क्या होगा? Differentiate करते हैं product rule. Y को differentiate करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? dy by dx. Differentiation of y dy by dx into this term as it is e raised power integral p dx as it is. Plus now y as it is into differentiation of e की power something. What is the differentiation of e की power something? E की power something is e की power something. So e raised to power integral p dx multiplied by the differentiation of this. बच्चों what is the differentiation of integral p? भाई किसी के integration का differentiation is the same, right? So integration of x स्क्वायर dx, अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर. भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नलीफाई एक तरीके से, you'll get x स्क्वायर, राइट? सो इफ आई डिफरेंशिएट इंटीग्रल p dx, what you are going to get? p, right? What you are going to get? p. now इसको एक बार अपनी कॉपी में लिखो, just write it in your notebook and let's move ahead. यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, just p, you'll get just p here. So differentiation of this is this, but why is it useful? अभी बताता हूं, but इसको कॉपी में नोट करो. I hope you have noted down in your notebook. Now let's see how it is useful for us. Now अब एक काम करते हैं अपन, let us start with a linear differential equation. कौन सा? y वाला. Let us start with the linear differential equation in y, right? So let us consider linear differential equation in y. मैं क्या करता हूं? Let me multiply all the sides by e raised to power integral. We need to create an exact differential, right? कैसे? So let me multiply all the sides by e raised to power integral p dx. We call it integrating factor. जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया, देखना बच्चों क्या हुआ. I multiplied this and this with e raised to power integral p dx y. अब ध्यान से देखना. Look at this very carefully. This is exactly what you got on the previous page by differentiation of y e raised power integral p dx. ये पूरी चीज suddenly बच्चों क्या बन गई? This entire thing suddenly looks like d by dx of y e raised to power integral p dx. अभी क्या हमने इसको differentiate किया तो यह आया था. This got created, which is differential of y e raised power integral p dx, right, is equal to e raised to power integral p dx multiplied by q. Now suddenly the problem becomes very simple. Now what I can do? I can integrate all the sides. Suddenly variable separate हो गया in a way, right? What happened? आप जैसे integrate करोगे ना दोनों sides को, if I integrate both the sides तो d by dx हट जाएगा, d by dx will go upon integrating. Can I integrate both the sides? तो ये तो गया बच्चों, ये गया, this goes away, and यहां पे एक इंटीग्रल आ गया dx plus c. This is what we call as the solution of
a linear differential equation. We call it the solution of linear differential equation. Got it? In short, इसको लिखते ऐसे, we write it as the solution of this differential equation is a direct result because of this derivation, which is y times integrating factor. This e raised power integral p dx is what we call as integrating factor. Y times integrating factor is equal to integral of q times integrating factor का integration plus c. This is what we call as the solution of linear differential equation. बच्चों इसको नोट करो. I hope ये आपको समझ में आया. Did you understand the derivation? It is just based on observation. Mathematicians ने बैठ के कुछ कुछ तो खेला. So they realized, some smart mathematician realized, अरे यार अगर मैं दोनों तरफ e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स मल्टीप्लाई कर दूं, so this entire thing will shrink and become a single product, right? So this was some smart mathematicians observation. ठीक है, अब वो mathematician होते हैं, हर किसी को नहीं दिखता, कुछ को दिख जाता है, क्या करें, राइट? क्लियर? c कैसे आया बेटा? इंटीग्रेट करोगे तो c आएगा ना. I integrated on both the sides, you get a constant of integration. Is that clear? आगे बढ़े. Should I move ahead now? चलो. So अब आ गया अपने पास, solution भी आ गया, तो अपन ने वही सेम चीज रिपीट किया मैंने. It is the derivative of y e raised power integral p dx. Hence we get this. So d by dx of y e raised power integral p dx is q this. Integrating both the sides. इसका इंटीग्रल इज दिस. डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन विल गो अवे. दिस साइड इंटीग्रेशन प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सॉल्यूशन. दिस इज द सॉल्यूशन बच्चों, राइट? नाउ यू कुड हैव डन द सेम थिंग फॉर अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. लेट मी राइट इट फॉर यू. ये किसका सॉल्यूशन था बच्चों? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. क्या थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q. उसका सॉल्यूशन ये रहा. सिमिलरली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx अपॉन dy प्लस p टाइम्स x is equal to q, where p and q are the functions of y. Here p and q were functions of x. ये x के फंक्शन थे. अरे बाप रे, ये कहां से आ गया? हाँ सॉरी, फिर से लिखना पड़ेगा मेरे को. ये तो अपन ने देख लिया क्विकली. dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q. तो ये आ गया. फिर से लिख देता हूं जल्दी से. dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x इज इक्वल टू q. इट्स सॉल्यूशन विल बी, बच्चों लिखो इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू, नाउ यहां पे y था तो अब यहां पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर with respect to y plus c, where integrating factor in this case will be e raised to power integral p. यहां पे क्या था बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर? p dx. यहां पे आएगा p dy. क्लियर? ये दोनों नोट डाउन कर लो. नोट इट डाउन. इज दैट क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करें. शुड वी गो अहेड एंड सॉल्व द क्वेश्चंस? फंक्शंस ऑफ x मींस द वैल्यू ऑफ y है. मार्शमेलो कहां कंफ्यूज हो गए बेटा? ये p और q फंक्शंस ऑफ x हैं, सो इसीलिए y सेपरेट है. फंक्शंस ऑफ x नॉट ऑफ y. यहां पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y नॉट ऑफ x. ठीक है, तो x अलग है, dx बाई dy अलग है, y अलग है, dy अपॉन dx इज सेपरेट. मार्शमेलो, इज दैट क्लियर? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम्स. बहुत हो गया थ्योरी. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बच्चों. दिस इज द प्रॉब्लम. लेट्स सॉल्व इट. Prantik, as I said, p and q should be the functions of, in this case, functions of x. If it is a linear differential equation in y, p and q are the functions of x or constants. Let me explain you. Question को explain करता हूँ. कैसे लिखा है ये ध्यान से देखना.
do you see dy by dx plus p of y is equal to q? So this is your p and this is your q. As I said, p and q are the functions of x if it is a linear differential equation in y, right? So बच्चों, what is the first step? What is the first step बच्चों? First step is first find out integrating factor. Integrating factor बच्चों क्या था? e raised to power integral p dx, right? p dx, because p and q are the functions of x differentiating with respect to x. करोगे सब लोग? क्या आ जाएगा? It will be e raised to power integral p क्या है बच्चों? 2x एग्री? ये तो बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. 1/x² का डिफरेंशिएशन 2x है, राइट? तो आप अगर 1+x² को पुट करोगे t, 2x dx will become dt. It is written integral dt upon t, that is ln t. This all of you know. तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? This will become e raised to power ln t. t कितना है? 1/1+x². What did I tell you? What did I tell you? E raised to power ln a is always a. I told you in the previous class also, e raised to power ln या log to the base e, anything is that number itself. I have told this many times in many chapters. ये सबको clear है? So this directly becomes बच्चों क्या? This directly becomes 1+x². This becomes 1+x². So आपका integrating factor बच्चों कितना हो गया? Your integrating factor for this problem becomes 1+x². So what is the solution now? Differential equation का solution बच्चों क्या होता है? The solution is what is the solution? Y times integrating factor is equal to integral q times integrating factor d of क्या आएगा? d of x plus c. This is your solution. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है, p आपको पता है, q आपको पता है, पुट कर दो, दैट इज योर सोल्यूशन. वेयर इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्रीतम? ये आ रहा ना प्लस सी, आएगा ना प्लस सी. तो करें सॉल्व, इसको आगे कर लेते हैं. लेट मी जस्ट शो यू द सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड. सो क्विक रिवीजन वंस अगेन. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई हैव सॉल्व्ड. इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1+x². पी क्यू आप पता ही है आपको. सो लेट्स सॉल्व. This is the solution. Integrating factor into y is equal to q times integrating factor dx plus c. Integrating factor बच्चों कितना था? 1+x². So 1+x² y is equal to integral q. q कितना था बच्चों? q was 1/1+x² का होल स्क्वायर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1+x² dx plus c. हो गया सॉल्व. ये कितना हो जाएगा? 1+x² कैंसल्स आउट. ये हो जाएगा 1/1+x² dx इंटीग्रल. यू ऑल ऑफ यू नो tan इनवर्स. सो 1+x² y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c. जैसे हनी नमन एंड संस्कार एंड ऋषभ एंड मेनी ऑफ यू ऑलरेडी रोट द आंसर. आई वेंट वेरी स्लो इन दिस बट आई होप यू अंडरस्टूड. यस और नो? समझ में आया बच्चों? यस और नो? Yes Gautam, of course you can join Vedantu channel beta. Just subscribe to it. Joining मतलब subscribe कर लो. Good. If you are getting it, do press on the like button so that I get your feedback. Okay? चलो आगे बढ़े. Let us go a bit fast now. JEE की problems भी तो solve करनी है. We have to solve some JEE problems as well, right? Cool. Pritam is asking, sir, why didn't we put the integration constant? Very interesting question. बहुत बच्चे पूछते हैं. प्रीतम इसका डेरिवेशन याद करो. डेरिवेशन कैसे आया था बच्चों? मैंने ई रेज पर इंटीग्रल पी डी एक्स एक नोटेशन से मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ. सो ई रेज पर इंटीग्रल पी डी एक्स वॉज अ नोटेशन विच आई माई सेल्फ मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स टू क्रिएट द सोल्यूशन, राइट? तो उसमें मैंने कॉन्स्टेंट यूज ही नहीं किया था. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल x² इज x³/3. तो मैंने x³/3 को इंटीग्रल x² की जैसे लिख दिया इन अ वर्ड, इन अ वे. सो फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डोंट यूज अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.
गॉट इट प्रीतम? सो डोंट डू दैट, बहुत बच्चों का डाउट होता है. सो डोंट, कमला नॉट टफ, इट इज ईजिएस्ट, इट इज सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग. सबसे इजी प्रॉब्लम है ये. मेथड क्लियर हो गया तो गारंटीड सॉल्व हो जाएगा. इसको करो, नोटेशंस क्लियर करो, सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. आई ऑलवेज से आफ्टर दिस क्लास आप आर डी शर्मा सब्जेक्टिव उठाना, पिकअप आर डी शर्मा सब्जेक्टिव, एटलीस्ट सॉल्व द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स. आप योर होल्ड ऑन द नोटेशन विल बी सुपर स्ट्रॉन्ग. आफ्टर दैट गो टू एनी जे लेवल बुक फॉर ऑब्जेक्टिव्स, बट बिफोर दैट आर डी शर्मा सब्जेक्टिव के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लो. विल टेक नॉट मोर देन 1-2 hours, बट योर होल्ड ऑन द कंसेप्ट्स एंड द नोटेशन विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, हाँ आ जाओ भाई जरा इसके ऊपर. इज इट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? यस, because all I care about is there is a dy by dx and there is a y and they are not getting multiplied together. तो भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, पक्का है. अब I but want to convert it into my general format which is dy by dx plus py is equal to q. I always want to write it like this. इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे करें? मैं क्या करूंगा इसको, I will write it as dy by dx डिवाइडिंग ऑल द साइड्स बाय कॉस स्क्वायर, सो बन जाएगा प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स. कैन आई राइट इट लाइक दिस? सो दिस इज माई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेर यू कैन इजीली सी दिस इज p and this is q. So dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू. स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कुछ नहीं, अब तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो यू नीड टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सब लोग करो, क्या होता है बच्चों, लिखो ऑन योर सेल्फ, राइट योर सेल्फ, ई रेज्ड पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. यस राइट, सो ई रेज्ड टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स. बार बार कीप सेइंग, कीप टेलिंग टू योर सेल्फ, है ना. करो सॉल्व. ई रेज्ड पावर इंटीग्रल पी कितना है बच्चों, पी इज whatever that gets multiplied with y, secant square x. What is integral of secant square x? करोगे इसके आगे? Yes. कोई बात नहीं गौतम बेटा, हो जाएगा. Just keep seeing here. मुजम्मिल, I will take revision classes of 11, don't worry. हाँ, तो आ गया सबका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, ये रहा e raised power 10x as all of you wrote here. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised power secant square x, यहाँ पे 2 गलत लिखा हुआ है. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों कितना आ गया, योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाज सॉरी e raised to power इंटीग्रेशन secant square x dx which is e raised to power 10x. ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, e raised power 10x. सो व्हाट इज माय सॉल्यूशन, कैन यू राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑन योर ओन. y टाइम्स क्या हो जाएगा सॉल्यूशन बच्चों, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised power 10x, y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q टाइम्स, ये रहा q, दिस इज q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो e raised power 10x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q secant square x इंटू 10x dx प्लस c. एग्री? बस ये तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व. क्या करोगे बच्चों, 10x दिख रहा है ना, 10x को t पुट कर दो, ऑल ऑफ यू नो. सो इफ यू पुट 10x इज इक्वल टू t, आपका secant square x कितना हो जाएगा, secant square x dx will become dt, it will become dt, राइट. तो ये प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई, दिस कन्वर्ट्स इनटू इंटीग्रल e raised to power t. ठीक है, 10x को t पुट किया, secant square x dx बन गया dt. सो e raised power t इंटू t dt. यू शुड रिमेंबर इट, ये तो याद होना चाहिए आपको, यू शुड रिमेंबर इट. व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ e raised power x इंटू x, ये याद ही होना चाहिए. बट सिंपल है, इसको आप बाय पार्ट्स भी कर सकते हो, राइट. यू कैन डू इट बाय पार्ट्स. सो डू इट बाय पार्ट्स एंड टेल मी द आंसर.
e raised power x, e raised power t into t minus 1. Yes, you are right. It will be e raised power t into t minus 1. Just put the value of t, you have the answer. इसका इंटीग्रल ये रहा या इसका डिफरेंशिएशन ये रहा, एक ही बात है. ठीक है. Yes, Suraj, you can use DI method as well. You are right. You can use DI method as well, which I told you in my shortcut की class. Remember integration shortcut की class. तो ये रहा आपका आंसर. So answer will be e raised power 10x minus 1 plus c e y e raised power 10x into e raised power 10x minus 1 plus c. हाँ बेटा, जेई में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, अभी करेंगे. वी विल डू सच प्रॉब्लम्स ऑफ जेई एज वेल. नहीं हनी नमन, आज मेंटी नहीं करेंगे बेटा. हाँ ये करो अब. लुक एट दिस प्रॉब्लम नाउ. डू इट. स्लाइटली ट्रिकी. यस आमिर मोहम्मद, यू आर राइट. ऋषभ संस्कार, यस यू आर राइट. अरे प्रखर बेटा, तुम्हारे KVPY से पहले तो सब कुछ ही हो जाएगा. एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड बिफोर KVPY, डोंट वरी. बट 3D कैन नॉट बी डन बिफोर वेक्टर्स. तो पहले वेक्टर्स करेंगे फिर 3D करेंगे. नाना इज आस्किंग इज जेई हार्ड. नहीं है जेई हार्ड. इफ यू स्टडी प्रॉपर्ली जेई इज नॉट हार्ड. इतनी तो सीट्स हैं यार. इन माई डेज व्हेन आई वाज अ किड लाइक यू, वी जस्ट हैड 2500 सीट्स इन जेई. हमें लगता था कि 2500 के पीछे रैंक आएगी तो मर जाएंगे, कूद जाएंगे छत से जाके. ठीक है. अब तो इतनी सीट्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, क्या टेंशन है. टेंशन मतलब जस्ट कीप स्टडिंग नाइसली. नेक्स्ट वीक न्यूरॉन, नेक्स्ट वीक वेक्टर्स विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. हाँ बताओ, ये तो बताओ मेरे को. One more class on this chapter. Next class is going to be on miscellaneous questions and very high level problems, JEE Advanced and JEE Mains. That is my next class of differential equation. हाँ क्या करें भाई इसका. यार ये बड़ा पंगा है ना. तो ये linear differential equation y में तो नहीं है. It's not a linear differential equation in y because there is a dy by dx. There is a y but there is a y ln y as well. ये कहाँ से आ गया. I don't want ln y. I only wanted y and dy by dx. Not a linear differential equation in y. So let me try creating a linear differential equation in x. I want to check if it is a linear differential equation in x. क्या करें. Let me write it like this. Let me take it other side. 2y ln y plus y minus x upon y is equal to dx upon dy. I just cross multiplied. ठीक है. अब इसको ध्यान से देखो. ये लिखा है आपके पास dx अपॉन dy. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा. दिस विल बी y से y कैंसिल. इट इज ऑन द अदर साइड 2 ln y. राइट. y से y कैंसिल. इट विल बी 1. ठीक है. और ये माइनस एक्स ऑन द टेकिंग आउट अदर साइड इट इज रिटर्न प्लस x अपॉन y. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज व्हाट यू विल गेट. अब आप ध्यान से देखो. व्हाट यू सी हियर. यू सी dx अपॉन dy and you see x. Yes, it is a linear differential equation in x. Very good, it is a linear differential equation in x. And what are the p and q? Direct format. जब भी डाउट हो ना बच्चों, अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख लिया करो. स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज dx अपॉन dy प्लस p ऑफ x is equal to q. This is the linear, this is the general format. P and Q should be functions of y. Yes, आप देखो P क्या है यहाँ पे. What is P here? P is 1 upon y. P बच्चों कितना है. P is 1 upon y. And what is Q here? If I am not wrong, Q is 2 ln y plus 1. अगर मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ नहीं की तो मैंने. Is that clear? So do you see a linear differential equation x here? Can you solve it बच्चों? What is integrating factor now? E raised to power integral p not dx. P is a function of y. So p dy. It is your integrating factor. And what is your solution? Your solution is going to be, पहले क्या होता था y into if. अब हो जाएगा x. x into integrating factor is equal to integral
q into integrating factor, right? Now everything is a function of y, dy plus c. This is your solution. Just do the calculations, all of you. Go ahead and do the calculations. समझ में आ रहा है बच्चों सबको? Are you getting it? Are you understanding me? भूमित, what is the best way to learn? बेटा मेरी कोई पुरानी क्लास अटेंड कर लो, थोड़ा सा उससे कंसेप्ट मिल जाएंगे, बाकी सॉल्व प्रॉब्लम्स. गेटिंग इट? वेरी गुड. चलो अब सॉल्व करोगे आप ही अपने आप. कैन यू डू इट ऑन योर ओन? सो कैलकुलेशंस चेक करते हैं. आई होप यू आर डूइंग ऑन योर ओन. सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नेक्स्ट. दिस इज द फॉर्मेट. P इज 1/y, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/y, q is 2ln y plus 1, right? Now integrating factor e raised to power integral p dy, which I just told you, which is e की power 1/y dy. I hope you are able to see it. 1/y कितना हो जाएगा इंटीग्रल? ln y. e raised to power ln y is nothing but y. e raised to power ln y is y. e raised to power ln a is a. e raised to power ln y is y. चलो अच्छी बात है. तो प्रॉब्लम क्या हो गया? आंसर इज, व्हाट इज द सॉल्यूशन? लेट मी राइट द सॉल्यूशन फॉर यू. सॉल्यूशन वाज x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस c. चेक चेक हियर. x टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy plus c integral. You just need to integrate it. Integration by parts. You'll have to do integration by parts. I hope you can do it. ln y into y. Integration by parts. Other thing is simply y dy. वो तो y square by 2 हो जाएगा. So कितना आ जाएगा बच्चों? x into y ln y into y square plus c, which Ainish Sinha has wrote and many other students must have. Naman, where are you stuck beta? Naman, did you get it? The calculations? Sagar, देखो एक बार वापस से सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा. आई होप यू कुड गेट इट. नहीं 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 आमिर मोहम्मद, चेक योर कैलकुलेशन चेक करना बेटा, क्या आएगा. ठीक. अरे अजय एक बार बेटा वो फॉर DI मेथड यू कैन गो एंड रिवाइज माई क्लास फ्रॉम माई शॉर्टकट. जस्ट सर्च वेदांतु पुलकित शॉर्टकट या इंटीग्रेशन शॉर्टकट ट्रिक्स पुलकित, मिल जाएगा आपको. हाँ आगे बढ़ो. अब आ जाओ जेई की प्रॉब्लम पे. दिस इज द जेई प्रॉब्लम. दिस विल टेल यू हाउ सिंपल जेई प्रॉब्लम्स आर. देखो इसको. कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक तो सब करते हैं यार. मैं जब तुम्हारे बराबर था ना, मेरा कोई भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं आता था. आई ऑलवेज यूज टू डू एट कोई ना कोई सिली मिस्टेक, गारंटीड सिली मिस्टेक करता था मैं. प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो करता ही था मैं. आई एम श्योर यू आर मच बेटर देन मी. हाँ देखो इसको पढ़ो. क्वेश्चन है x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2x log x x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देन y ऑफ e. बच्चों यहां पे क्या है, c की वैल्यू आपको मिल जाएगी. कैसे देखते हैं? प्रणव इज आस्किंग व्हेन डिड आई स्टार्ट माई जेई प्रिपरेशन. यार 11th तो मस्ती करके निकल गया. 12th में आई स्टार्टेड इन 12th. 11th में आई वॉज डूइंग मस्ती फुल टाइम. हाँ क्या करें, बहुत सिंपल है ये, ध्यान से देखो. फॉर्मेट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. फॉर्मेट इज, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y बिकॉज यू सी dy by dx एंड यू सी y. dy by dx है, y है, तो पक्का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में है. कन्वर्टिंग इनटू अवर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैं क्या चाहता हूं, आई वांट द फॉर्मेट एज dy by dx प्लस लेट मी डिवाइड बाय x log x. सो y into 1 upon x log x. This is my p is equal to 2x log x. X log x is equal to 2. So this is my linear differential equation. So this is p
and this is q. I told you p and q should be functions of x or they can be constant. So ये p है, ये q है, बस आपको इंटीग्रेट करना है, बिग डील. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स का है, p क्या है? 1/x log x dx. अरे बहुत सिंपल है ये तो. log x को t पुट कर दो, 1/x dx. सो यहाँ क्या करोगे आप पुट करोगे log x को t. व्हेन यू पुट log x इज इक्वल टू t, बच्चों क्या लिखा है ये लिखा है e रेज टू पावर इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, तो dt हो गया. तो ये कितना हो जाएगा? 1/t dt. ln t कितना हो जाएगा? e रेज टू पावर ln t, दैट इज t. यस, ठीक है. तो आगे करें. नहीं बेटा, कौन पूछ रहा है ये log? अरे प्रीतम, log बेटा हमेशा टू द बेस e होता है. 10th के बच्चे थोड़ी हो. इन कैलकुलस log इज ऑलवेज टू द बेस e. ओके, हाँ, तो देखते हैं. लेट्स सी द सॉल्यूशन. ये फिर से आ गया यार. हाँ, ये देखो क्या आ गया आपके पास. कैलकुलेशन चेक करो. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया? e रेज टू पावर log ऑफ log x, दैट इज log x. सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ लिखा था. हाँ, तो क्या हो गया था? दिस वाज, इट बिकेम e रेज टू पावर इंटीग्रल 1/t dt. t कितना लिया था मैंने? 1/log x. t was log x, है ना. तो ये हो गया, दिस इज e रेज टू पावर ln t, दैट इज e रेज टू पावर ln ऑफ t इज ln t, राइट. e raised पर ln a is a, e raised पर ln t is ln t. ठीक है, क्लियर है ये? कूल. तो यहां तक तो हो गया. तो अब क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं यहां से. ये log x आ गया. एनी डाउट? हाँ, सॉरी, वो मैंने कुछ गलत लिख दिया था. ln x, राइट. दिस इज ln x. e raised पर log ऑफ log x इज log x. e raised पर log ऑफ a, e raised पर ln a is a, e raised पर ln ऑफ ln x is ln x. ये तो क्लियर हो गया. चलो, वेरी गुड. अब आगे बढ़ जाओ. इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बस सॉल्व कर दो आगे. तो आपका आंसर कितना आएगा? y दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. सबको आता है. log x का इंटीग्रेशन इज x log x minus 1, x ln x minus x, x टाइम्स ln x minus x प्लस c. बस. नाउ क्वेश्चन में गिवन था, या मैंने क्वेश्चन में शायद लिखा नहीं था. इट वाज गिवन दैट y ऑफ x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू गिवन है मेरे ख्याल से. क्वेश्चन देखें वापस से, गिवन है क्या? शायद मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं. y ऑफ e चाहिए, बट आई थिंक y ऑफ 0 इज गिवन. मैंने शायद क्वेश्चन में लिखा नहीं है. सो y ऑफ 0 वाज गिवन टू यू, राइट. नहीं, सॉरी, कुछ नहीं गिवन था. इससे भी हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट वी गॉट. सॉरी. तो देखो ध्यान से, क्या मिल गया आपको? ध्यान से देखो क्या मिल गया. टिल हियर इट्स क्लियर? एनी डाउट? यहां तक क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? यहां तक क्लियर है? ठीक है. तो क्या किया मैंने देखा x को जब 1 पुट करते हो ना, बहुत ध्यान से देखना, जब यू पुट x इज इक्वल टू 1, तो log 1 बच्चों कितना हो जाता है? 0. इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ y. log 1 इज 0, सो log 1 इज 0. ठीक है. log ऑफ 1 इज 0, x इज 1. तो बच्चों आपके पास क्या हुआ? y इंटू 0 इज इक्वल टू दिस प्लस c. तो बच्चों यहां से c की वैल्यू आ गई आपके पास. विदाउट knowing any other information, directly by putting x is equal to 1, you could see that the value of c is 2. Does that make sense to you? ये समझ में आया? This was a tricky step here. यहाँ तक समझ में आया? Yes. क्या किया मैंने? x को 1 पुट किया, तो ये log 1 0 हो गया, तो y गया. y के जाते ही केवल क्या बच गया? c. And I got the value of c. तो c बच्चों आ गया 2 मेरे पास. क्वेश्चन था x इक्वल टू e पे y की वैल्यू क्या है. सो माई क्वेश्चन बिकेम, नाउ माई सोल्यूशन बिकेम y ln x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x ln x माइनस x
plus 2. Now this is my solution. I want x is equal to e पे y की वैल्यू. तो हमने क्या किया, हमने x को पुट कर दिया e, आपने x को पुट कर दिया e, राइट. आपके पास बच्चों क्या आ जाएगी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. दैट इज वाज द क्वेश्चन. आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2. आई होप आई कुड मेक सेंस हियर. समझ में आया सबको? Kamla, because no other option was there. I wanted y of e. I wanted y when x is equal to e. I could only find it अगर मुझे c की वैल्यू मिल जाती. c की वैल्यू निकालूं कैसे, कुछ और इंफॉर्मेशन दी नहीं थी मुझे. सो मैंने सोचा यार ये y के साथ log x मल्टीप्लाई हो रहा है. इफ आई मेक log x इक्वल टू 0 तो y के ऊपर डिपेंडेंस खत्म. नो डिपेंडेंस ऑन y. सो व्हेन आई पुट log x इक्वल टू 0 which happens at x is equal to 1, this gone, this gets some value, will give me c. That was the smartness that you need to apply. Is that clear? Yes honey, you are right. हो जाएगा उससे. Enough. आगे बढ़े, एक और प्रॉब्लम करें. Let's do this. JEE Mains 2017. Look at this one. Yes, that was a slightly tricky one. Yes Preetam. Thank you Prakhar. I love you too. हाँ आ जाओ इधर. So 2 plus sin x dy by dx plus y plus 1 cos x equal to 0. अब बताओ. अब देखो इस केस में क्या है ना, आपको y of 0 is 1 is given. This will help you find the value of c. And this is the question. ठीक है, तो क्या given है आपको? Oops, क्या किया मैंने? y of 0 is equal to 1 मतलब क्या है? It implies when x is equal to 0, y is equal to 1. This is given to you. y of 0 is equal to 1 means when x is 0 then the value of y is 1. अब करोगे solve? Can you do it? So this is your JEE Mains 2017 recent problem, but you will realize very simple. बहुत ही simple है ये. I will tell you two methods to solve it. Method 1, आप ध्यान से देखो, आपको दिखेगा अरे ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy by dx भी है और y भी है. So when you see, always think dy by dx y linear differential equation, पक्का अपना मेथड अप्लाई हो जाएगा. So what will you do? You will first try to convert it in the linear differential equation format. कैसे बच्चों? So आप लिखोगे dy by dx plus y, ठीक है, you will divide by 2 plus sin x. So y into 1 upon 2 plus sin x, right? इधर क्या था? तो y इंटू कॉस एक्स भी था ना, तो यहाँ पे कॉस एक्स भी था एक, राइट. सो y इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, राइट. एंड दिस कॉस एक्स आई एम टेकिंग ऑन द अदर साइड, सो दिस विल बिकम माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स. यहाँ तक आ गया. इफ आई एम नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक कर लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. लॉट ऑफ यू आर सेइंग ए इज द आंसर. हाँ हो सकता है, लेट अस चेक. अच्छा है कैलकुलेशन कर लिया तो. This is your P and this is your Q. Now all of you can do the calculation on your own. dy by dx plus py is equal to q. Find out the integrating factor. Integrating factor बच्चों कितना हो जाएगा? It will be e raised to power integral p dx cos x upon 2 plus sin x dx. Very simple. 2 plus sin x का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है ऊपर, साइन का डिफरेंशिएशन cos, 2 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos. तो बच्चों कितना हो जाएगा? इट इज e रेज टू पावर ln 2 प्लस sin x, which is nothing but 2 plus sin x. So बच्चों इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? 2 plus sin x. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 2 plus sin x. जस्ट राइट डाउन द सॉल्यूशन. मैनी ऑफ यू मस्ट हैव डन इट बाय नाउ. सब लोग बोल रहे हैं ए आंसर है, तो लेट मी क्विकली शो यू. तो क्या किया अपन ने? स्टेप 1, dy by dx plus p of y is equal to q. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised power इंटीग्रल p dx which is e raised power log 2 plus sin x, because 2 plus sin x को t पुट करोगे तो t dt upon t. So sorry, ये कितना हो जाएगा? This will become cos x dx will become dt. Integral dt upon t ln t ln of 2 plus sin x, which is this. Solution is y times integrating factor is equal to q times
q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, ये तो कैंसिल हो गया, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, बस वेरी सिंपल कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा बच्चों? सो दिस विल बिकम y टाइम्स 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस सी, यहां तक आ गया। दिस इज योर सोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन में गिवन था कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, दिस वाज गिवन, राइट। जिसका हो गया, थिंक ऑफ एन अल्टरनेट मेथड, द वंस हु हैव डन, प्लीज थिंक ऑफ एन अल्टरनेट मेथड, सब लोग सोचो अल्टरनेट मेथड जब तक मैं समझा रहा हूं ये, राइट। तो y ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फिर से बोल रहा हूं, x इज इक्वल टू 0 पे y है 1, तो इस पूरे के अंदर पुट कर दो x 0, सो x 0, राइट, y 1, दिस विल गिव यू वैल्यू ऑफ c, तो वैल्यू ऑफ c आ गया बच्चों 2, वैल्यू ऑफ c इज 2, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? सो दिस कन्वर्ट्स इनटू दिस, क्या किया, c को 2 पुट कर दो, c को 2 पुट कर दो, 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स, ये आ गया, दिस इज योर सोल्यूशन। व्हाट डू वी कॉल इट? एग्जैक्ट सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस इज जनरल सोल्यूशन, बिकॉज ऑफ अ गिवन कंडीशन दिस इज अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, राइट। याद है मैंने आपको सेकंड क्लास में बताया था। नाउ यू वांट y ऑफ पाई बाई 2, मतलब यू वांट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, कुछ नहीं है, इसमें x को पाई बाई 2 पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y विच इज 1/3 विच यू टोल्ड एज द आंसर। ओके प्रीतम, अरे कोई दूसरा मेथड बताओ। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल, वेरी गुड, आई थिंक प्रांतिक टोल्ड द करेक्ट आंसर, राइट, द करेक्ट मेथड। थिंक ऑफ इट बच्चों, ये वेरिएबल सेपरेबल से भी तो हो जाता। यस एग्जैक्टली, ऋषिराज, आमिर मोहम्मद, यू आर राइट। सो सेम क्वेश्चन कुड हैव बीन डन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड एज वेल। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ये था क्वेश्चन, देखना ध्यान से, दिस वाज द क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, आज की क्लास के एंड में आई एम गिविंग यू सम होम असाइनमेंट्स एज वेल, सम 2-3 प्रॉब्लम्स, डू इट जस्ट आफ्टर द क्लास। हाँ, तो ये था क्वेश्चन आपके पास, आपको dy by dx और y दिख गया था, दैट्स वाई यू अप्रोच इट थ्रू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इन एग्जाम आई ऑलवेज वॉन्ट यू टू थिंक, सबसे पहले स्टेप 1, इज इट अ वेरिएबल सेपरेबल, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, शुड बी योर फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक, शुड बी योर फर्स्ट वे ऑफ थिंकिंग। अगर आप वैसे सोचते तो आप देखते, अरे वाह, मैं dy by dx के अलावा सब चीज को उधर लेके जा सकता हूं, आई कैन टेक एवरीथिंग ऑन द अदर साइड। So dy by dx is equal to minus 1 upon 1 cos x upon this. I can take y plus 1 back here, dx there. ये हो गया वेरिएबल सेपरेट। So dy upon y plus 1 is equal to minus cos x upon 2 plus sin x dx. बहुत ही सिंपल हो गया। क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन log y plus 1, इसका इंटीग्रेशन log 2 plus sin x। c को तो मैं कैसे पुट कर दूंगा? इन द प्लेस ऑफ c आई विल राइट ln c। ये भी ln में, ये भी ln में, आई वॉन्ट टू राइट दिस इन द ln एज वी सॉ इन आवर प्रीवियस क्लासेस। तो ये पूरा प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गया? समझ में आया सबको? मैंने क्या किया? आई टुक दिस log y plus 1, इसको मैंने कैसे लिखा? log ऑफ c ln c माइनस है ना, सो डिविजन c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। सो y plus 1 इज इक्वल टू c अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। नाउ x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बच्चों, राइट। सो y बच्चों कितना आ जाएगा? y will upon calculation will give you same thing which you found out in the previous way, and y pi by 2 is this। सबको समझ में आया? दोनों मेथड्स इक्वली सिंपल हैं, बट व्हाट आई वांट यू टू लर्न इज व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम, हाउ डू यू अटैक द प्रॉब्लम। ऑलवेज थिंक, सबसे पहले सोचो बच्चों, क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकता है? इफ यू कैन थिंक दैट वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड विद dy फंक्शन ऑफ y, विद dx फंक्शन ऑफ x, प्रॉब्लम यूजुअली कैन बी सॉल्व्ड वेरी सिंपली। इफ नॉट दैट, देन थिंक, क्या यहां पे y और dy by dx सेपरेटली लिखा हुआ है? इफ यस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन। अरे प्रणव, तो कोई बात नहीं ना, फाइनल, अरे सी, क्योंकि ये फॉर्मेट ही डिफरेंट है ना बेटा, तो सी की तो वैल्यू डिफरेंट आएगी आएगी, बट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, द फंक्शन दैट यू आर गेटिंग, दैट शुड बी सेम, दैट शुड बी सेम। अंडरस्टैंडिंग इट? यस और नो? सूरज एंड प्रणव,
डिड यू अंडरस्टैंड? फॉर्मेट अलग हो गई ना, तो सी तो ऑब्वियसली अलग आएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइनली हैज टू कम आउट टू बी दिस. गॉट इट? प्रीतम और सूरज जल्दी से बताओ, यस नो, डिड यू गेट इट और नॉट? यस, चलो वेरी गुड वेरी गुड. तो ये तो हो गया आपके आईआईटी के प्रॉब्लम्स. नाउ नोट डाउन सम होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन सम होम असाइनमेंट प्रॉब्लम्स. अब ये 2-3 प्रॉब्लम अभी क्लास के बाद कर लो, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास. दैट विल हेल्प यू स्ट्रेंथन द कंसेप्ट्स. इन द पीडीएफ ऑफ दिस आई हैव गिवन द सोल्यूशन. जब इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो आपको उसमें मैंने सॉल्यूशंस लिख के दिए हैं, जो कैन चेक. ठीक है, सो प्रॉब्लम नंबर 1, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो या रिप्ले में देख लेना. x² - 1 dy/dx plus 2xy = 1. वेरी सिंपल, जस्ट फॉर योर कैलकुलेशन. ठीक है ना? ग्रेट, आई होप यू अंडरस्टूड द क्लास टुडे. सो दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 1. नोट कर लिया? x² - 1 dy/dx plus 2xy = 1. स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिप्ले में देख लेना. क्वेश्चन नंबर 2, दिस वन, x into x² plus 1 dy/dx is equal to y into 1 minus x² plus x² ln x. यस, लिखो 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 जल्दी से, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना. यस आदित्य, ऑफ कोर्स यू आर राइट, व्हाट यू सेड विल रियली हेल्प यू. डू इट, करते जाओ बस, लाइफ में रुकना नहीं है, करते जाना है. दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नहीं कर पाओगे. टेक अ स्क्रीनशॉट और आफ्टर इन द रिप्ले प्लीज सी इट. एंड द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस एज रिप्ले लेटर ऑन, जो बच्चे बाद में देखेंगे इस वीडियो को, प्लीज राइट डाउन योर आंसर्स. एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो राइट डाउन योर आंसर्स इन द चैट. ये वाला लाइव चैट नहीं, वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सो दैट आई कैन सी योर नेम्स हु आर गिविंग द आंसर्स इन द कमेंट स्ट्रीम आफ्टर द क्लास. Cool. So this is your problem number 3rd. Solution will be there in the Telegram group. After some time, the team will share the PDF in the Telegram group. ठीक है? Everything is also available on Vedantu app. आप Vedantu की app download कर सकते हो. Everything is available there as well. And बच्चों, I will end the class. कैसे? खुशी खुशी end करेंगे, खुशी खुशी. y = x². ठीक है, जीवन में खुश रहना है, इन द लाइफ बी हैप्पी. ठीक है, सो डू यू रियलाइज नथिंग इज डिफिकल्ट. वॉज इट डिफिकल्ट टुडे? वॉज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफिकल्ट? सिंपल है यार, स्टेप बाय स्टेप करो, एवरीथिंग इज सिंपल इन लाइफ. बस टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल बी डन. होता है तो हो जाएगा, नहीं होता तो देखा जाएगा, बट लाइफ में खुश रहना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड हार्ड वर्क करते रहना है, कीप डूइंग द हार्ड वर्क. दैट्स इट, सिंपल है लाइफ, लाइफ में कुछ मुश्किल नहीं है. Okay, chalo, on that note I'll end my class. See you in my next class. Next class is very important. In the next class we will do some miscellaneous formats. We will do miscellaneous formats in the next class, and JEE Advanced and JEE Mains problems. Next class is very very important बच्चों, so just make a note. नेक्स्ट क्लास इज ऑन फ्राइडे 6 PM. वेरी इंपॉर्टेंट, उससे पहले पढ़ लेना, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास टू सॉल्व सम हाई लेवल प्रॉब्लम्स. ठीक, चलो. अरे बेटा कोई भी बुक कर लो, तुम लोग मुझसे बुक्स ही पूछते रहते हो, कोई भी बुक कर लो, सारी बुक्स अच्छी हैं, बट बेसिक्स कर लेना. आर डी शर्मा सब्जेक्टिव के सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना बिफोर यू पिक अप एनी बुक. एवरी बुक, सी सेंगे, जेरियन, दिस दैट, 95% problems are same in all the books. कुछ भी बुक कर लो. ओके, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे 6 PM. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. बाय बाय.